because of his level of devotion. He is able to communicate with everyone. Or somebody who is ignorant, अज्ञान के कारण से 2-4 शब्द भक्तों के विषय में बता दे, भगवान के विषय में बता दे, तो बोलते हैं yes, he is ignorant, I need to help him out now, to correct him. Or somebody who is envious, he knows about God, but he cannot appreciate him. Just like the example of enviness is Shishupal. भगवान के विषय में सब कुछ जानता था. He knew everything about Krishna. Every pastimes that are found in Srimad Bhagavatam, Shishupal revised everything there. जब महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ हो रहा था ना, वहां जाकर के भगवान का अपमान करने चालू किया. He picked into every pastime to criticize Krishna for. There are only 2 pastimes that he could not touch into because he had no right words to interpret it wrongly. वो था भगवान का गोवर्धन लीला. वो कहते पुतना को मारने में कह दिया बिग डील, ही किल्ड अ वुमन. क्या मान किया तुमने? But when he came to go lifting a Govardhan hill, such a huge hill, anyway, it will glorify Krishna whatever I say regarding the hill, because hill was so big, no child can lift it, and fighting with Kaliya, that also he could not interpret it. So he left 2 of those pastimes. इसके विषय में नहीं बोलना है क्योंकि मैं इसको interpret नहीं कर पाऊंगा. That's because of envious. He knew everything about God. In today's society, the Shastras say कि most of us we also come to that level. We know. जन्म से लेकर आज तक राम के विषय में आप सुनते आए हैं, है ना? काफी सुने हैं आप लोग ने. We have heard so much about Krishna right from the birth. जन्म से लेकर जब आप 1 साल के थे, पापा मम्मी जब घर से थोड़ा काम करने का जरूर पड़ता था, आपको थोड़ा किसी चीज में व्यस्त कराने चाहते थे, तो राम और कृष्ण का कुछ कैसे लगाते थे, आप दिखते रहते थे. राम और कृष्ण के साथ हमारा इतना घोलमेल हो चुका है. परंतु as we grow up, we become expert scientists, we become doctors, we become engineer. What is our understanding about Ram and Krishna? अरे कृष्ण किसी की लड़की को लेकर के चलेगी, कैसे बात है? अरे जीवन तक कृष्ण के विषय में तुमने सुना है. अरे कितना कृष्ण में इतना दूषितपन होता तो जन्म से लेकर आज तक क्यों सुनते आ रहे हो तुम, है ना? और अंत में अरे राम जी ने सीता को जंगल में परित्याग किया, अच्छा नहीं किया, करने से पहले मुझे पूछना चाहिए था, है ना? This is due to enviness. So Shastra says, Krishna says, those who are envious of me, he says, Chipam mea jashavan shuvan, I throw you into hellish planet. This is very dangerous, to become envious of God. Because we cannot appreciate, the great qualities. No one says, oh, Krishna did wrong thing by looking after his, 16,108 wives and they all never had any problem. किसी पति को भी कोई आपत्ति नहीं था, हर व्यक्ति को एक घर दे दिया. That we don't find as a problem, है ना? भगवान कृष्ण के पास आप जाते हैं ना, 16,108 रानियां थे और हर रानी को एक माल दे चुके थे. हर रानी के पास एक माल थे. और आजकल तो हम लोग जानते हैं कि हर बार जब हम लोग इंडिया जाते हैं, पत्नी ने बोल दिया कि 10,000 का साड़ी ला दो, तो 10 बार झगड़ा करने पड़ेगा अभी. That is the ability of God. He is trying to show that he can go to any extreme level and still have everything under the control and everyone is satisfied by his supremacy. But us, there is nothing we can do. So, enviness. Those who are envious of God, he will immediately reject them. चलो बाहर भागो, आपसे कुछ नहीं कहना है, नमस्कार, आप अपने घर जाइए, प्रसाद खाइए, हो सके तो बीच बीच में मंदिर आ जाना. अब क्या बोलूं, आप सब जानते हैं भगवान के विषय में, you simply develop enviness of him, है ना? envious person बहुत खतरनाक है. चाणक्य के पंडित क्या कहते हैं? सर्पक्रूरा तराक्रूरो, सर्पक्रूरो तराक्रूरो, मंत्रो सती वशा सर्प कालकेन निवर्यते. बोलते इस संसार में 2 विशाले प्रकार के जीव रहते हैं. एक तो सांप, one is snake and another is a man snake. जो आदमी जिसका मन सांप के तरह हो चुका है, जो ईर्ष्या करता है. Snake is well known for being envious. Who are the 2 types of envious living entities? The snake and the man snake. फिर चाणक्य पंडित आगे कहते हैं, मंत्रो सदी बसा सर्प कालकेन निवर्यते. सर्प को 2-4 मंत्र बोल दो, उसका एनविनेस खत्म हो जाएगा, भागेगा. परंतु आदमी के लिए क्या मंत्र बोलोगे?
ये विषालु चीज के लिए कोई मंत्र ही नहीं है। तो इसीलिए भगवान गीता में भी कहते हैं कि ये ज्ञान ऐसे व्यक्ति को कभी मत दो जो ईर्ष्या करता है। तो ईर्ष्या तो सदा के लिए हटा देनी चाहिए, विशेष करके भक्ति मार्ग में भी उसका कोई स्थान नहीं। ये रहता है माध्यम अधिकारी, लोग के साथ जज करने जानता है। और अदर इज कनिष्ठ अधिकार। कनिष्ठ का अर्थ रहता है जो व्यक्ति अभी भक्ति मार्ग में चलना सीखा, उसका डिस्क्रिप्शन आता है कि यहारा कोमाला श्रद्धा सकनिष्ठ जाने क्रामे क्रामे तेना भक्त हो भी उत्तम। यहारा कोमल श्रद्धा, जिसका श्रद्धा बहुत कोमल है। 2-4 बार एक प्रभु जी के साथ मिला था मैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमारे कुछ डिवोटी लोग ब्रज गोविंद प्रभु जी के पास जाकर के बहुत सुंदर से संडे में आधा घंटा 45 मिनट बिताते हैं। तो उनमें से भक्त से बात करने से वो एक हृदय में श्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं भगवान के प्रति। इसको कहते हैं यहारा कोमल श्रद्धा, कि कहीं से दिस कोमल, दिस सॉफ्ट फेथ इज पुट विद इन यू। जैसे हम लोग पहले we talked earlier about this कोमल faith. If you don't protect it and you allow the mad elephant to come in between, then what happens? It destroys all. पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था। So यारा कोमला श्रद्धा, you have just started to engaging in devotional service and you find that devotional service is nice. कि आपको अच्छा अनुभव हो रहा है इसके विषय में। हाँ, इसके विषय में मुझे थोड़ा आगे जानकारी होना चाहिए। I want to learn little bit more about it. और उसके बीच में कोई तीसरा आदमी आकर बोल दिया, अरे ये तुम प्रभु जी को जानती हो, ये बदमाश प्रभु जी है। उसके सामने जिसका अभी थोड़ा सा श्रद्धा बैठा दिया था, और कोई तीसरा व्यक्ति असुर आकर के बीच में आकर के श्रद्धा में ठोकर लगा दिया। या कोई बोल दिया, इन वास्तविक रूप में मैंने भागवत गीता 10 बार पढ़ाई किया है, ये भागवत गीता में कुछ नहीं है। जिसका मजबूत हो चुका है, जो माध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, उसको तो कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगी। परंतु जो व्यक्ति एक कनिष्ठ अधिकारी हो, जो अभी अभी भक्ति करना चालू किया, उसके ऊपर 2-4 लोग, जैसे एक ऐसा हुआ कि एक बहुत सुंदर गुजराती परिवार थे कि 6 महीने के बीच में मैंने उनको अच्छी तरह से प्रचार किया था। और उनमें से एक डिवोटी थे जो 12 साल पहले मंदिर में आते थे। कोई इंडिविजुअल के साथ उनका कुछ जम छोटी हो गया था, कुछ हो गया था उनके ऊपर। तो आदमी जाकर के वो घर चले गए और उनको कहाना सुना दिया। फिर मैं बोला कि भाई आप तो 1 महीना से आपको मैंने मंदिर में नहीं दिखा, क्या हो गया? तो बोलते कि प्रभु जी मुझे ऐसा कुछ सुनाई दिया जिससे मेरा थोड़ा मन बह गया, है ना, मन बह गया, तो मंदिर में आने का मन नहीं करता है। तो इसको कहते हैं कोमल श्रद्धा, सकनिष्ठ जाने। ऐसे कोमल श्रद्धा वाले को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि क्रमे क्रमे तेना भक्त हो भी उत्तम। जा करके तुम माध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के साथ संगत करो, तुम भी उत्तम में आ जाओगे। ये शिक्षा देते हैं चैतन्य महाप्रभु कि जब आप भक्ति का जीवन चालू कर ही लिया तो आपको ऐसे कहीं सुनाई दे जो व्यक्ति कुछ भक्ति के विरुद्ध कह रहा है, जस्ट वॉक आउट फ्रॉम देयर। क्योंकि आप इतना सॉफ्ट है, आप बैठ के खड़े होकर सुनेंगे तो प्रभाव पड़ सकता है आपके जीवन में। You might stop listening about Krishna because he just made some weakness there. So in the beginning, therefore, Prabhupada ji कहते थे, even when it comes to a management type of a religious management of the temple, Prabhupada used to say कि management means some disagreement and agreement. So if you are just a starter in devotional path, don't get into it. Although you might get discouraged in the path of devotion just because आप जानते हैं management का अर्थ संसार के साथ लड़ करके कुछ चलाने पड़ता है। बोलता अरे मैं तो सोचता था भक्ति में मंदिर में कुछ 2-4 बात होता ही नहीं है, मैं तो सोच रहा था यहाँ सब शुद्ध भक्त थे, नहीं ये तो दोनों झगड़ा कर लिया यहाँ पर। You have some expectation about temple, so therefore in beginning the process is just hearing, chanting, associating with the devotees. That makes our faith very strong, and once that is done, then we understand the reality of the world. So भगवान कहते हैं कि the procedure is you associate with the greater devotees. In that way, you develop a stronger faith, and after that happens, then Krishna says, what happens to you is text number 7 of 10th chapter. मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, आप लोग तो किसका है खुला उस श्लोक में? Okay, that's 8. Sorry, I made a mistake. Who is on 8? Text 7 or? Text 8. Who is it? Okay, you want to Aham sarvasya prabhavo
मत्त सर्व प्रवर्तते इति मात्वा भजन्ते मां बुधभावा समन्वितः। You want to read? I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Okay, so once your faith becomes strong by the association of the devotees, Krishna is saying this is what happens to you. This is called a Sambandha Gyan. This what you understand about God. That's what you understand about Krishna. Is Aham Sarvasya Prabhavo. I am the source of all spiritual and material world. अब इस बात में अगर पूछा जाए तो आपको मैं बोलूं कि देखिए सब कुछ भगवान से आता है। थियरिटिकली आप स्वीकार तो करेंगे, नहीं मुझे पता नहीं है, अगर मुझे पता नहीं तो मानने तो पड़ेगी ना, या तो जानो या तो मानो ना, या तो जानो या तो आपको जानना चाहिए, नहीं तो फिर मानने चाहिए, इसके बीच में मत रहना। तो आप बोलते क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ इसलिए आप जो कह रहे हैं उसको मैं मान जाता हूँ, ठीक है। परंतु वास्तविक रूप में क्या इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवो, कि जब समय आ जाएगा क्या आपका जीवन बलि महाराज की तरह हो सकता है? आप जानते हैं श्रीमद् भागवत में बलि महाराज बलि जब वामन देव जाकर के 3 पादुक घूमे उनसे मांगे और उनके गुरु कहते हैं शुक्राचार्य भाई मत दो, विष्णु है, जब ये लूटता है तो थप्पड़ पाड़ के लूटता है। तो बोलता है बलि महाराज कहते हैं अरे सारा संसार इनसे लूटता है और ये जीवन में सबसे पहला बार है जाकर के हरि किसी से लूटने जा रहे हैं। भगवान किसी के लूटते नहीं है, लूटते हैं नहीं, देते हैं, आप लूटते हैं हरि को। जो हरि देते हैं खाते हैं, संसार को भोगते हैं, उसके बारे में किसने दिया ये भी भूल जाते हैं। फिर ये हमारा पद। तो महाराज बलि कहते हैं कि भाई ये तो सारा संसार से लूटा जाने वाले व्यक्ति है और ये आकर के मुझे लूटे है तो मैं पहला व्यक्ति जो हरि से लूटा जाएगा आज, और इसका मौका नहीं छोड़ूंगा। अपने गुरुजी को तिरस्कार करके दान देने में चले जाते हैं ये सोचे बिना कि मेरा क्या हालत होगा, कि ये जानते हैं सारा हरि का ही है, सारा विष्णु का ही है ना, सारा विष्णु का ही है। तो अंत में जाकर के जो जिसका है, और मैं भी विष्णु का हूं, अगर विष्णु खुश रह जाए तो मैं भी खुश हो जाऊंगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि जिस पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छा संबंध हो, प्रभु जी आप भोग लगा सकते हैं ना, फिर साथ में आरती भी कर देंगे बाद में। तो जैसे हरि के जीवन में शास्त्र में लिखित रहता है कि जो व्यक्ति जान जाते हैं कि ये जो मेरे पति है मेरे शुभ चिंतक है, गृहस्थ जीवन में भी लगता है कि ये मेरा हित का बात छोड़ करके कभी नहीं करते हैं। माई हस्बैंड ही डज नथिंग अपार्ट फ्रॉम माई बेनिफिट और बेनिफिट ऑफ बच्चे, है ना। तो जितना भी मैं कमाई करूंगा मैं हस्बैंड के अकाउंट में रखूंगा। अगर ये श्रद्धा है तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि किसके खाते में चला जाए, पत्नी का या पति का क्या फर्क पड़ता है। माई हस्बैंड इज देयर फॉर माई लाइफ, है ना, कुछ भी फर्क पड़ जाए। जब आपको ऐसा लग जाता है कि हस्बैंड से डरने लग जाते कि नहीं अगर इसके खाते में सबके सब डाल दूं तो मुझे $10 भी नहीं देगा खर्च करने के लिए, इससे अच्छा अलग से खाता खोलूं मैं। When there is no trust, do you find that in a family life also? It happens. तो यहाँ पर same thing the शास्त्र से, when you accept that everything belongs to Krishna and Krishna is here for my welfare, then you are ready to surrender to any level with him. कुछ भी देना है दे दूंगा भगवान, क्या फर्क पड़ेगा, आपका ही तो है। और जिस दिन भिखारी हो जाऊंगा आपका द्वार ठटकाऊंगा फिर, तब भी आपको उसका उत्तरदायित्व तो लेना होगा। दिस इज कॉल्ड ए कन्विक्शन। महाराज बलि ने वही किया, बोले अरे ले लो ना, क्या फर्क पड़ता, ले लो। कितने चाहिए, कितना पादुक भूमि चाहिए, बोले 3 चाहिए। तो बोलते ठीक है 1 ले लिया। तो 1 पादुक भूमि से अतल पितल तलातल रसातल महातल पतल 7 लोग को ढक दिया उन्होंने, और बोले दूसरा पाव कहाँ है, ये है, अब काट डाल दो। बोले चलो ऊपर ले लो, टेक इट अप। So he took all the way to Vaikuntha and Brahma was gone also, no space left even for needle now. तो अब सोच ही रहे थे, फिर भगवान कहते हैं अरे भाई ये तीसरा काट डाल दूंगा मैं। बोला तो सही ना, तुमने 3 तो बोला था ना,
जस्ट वी टू एवरीथिंग इज टेकन अवे। अब क्या करूं? तो बलि महाराज की पत्नी बैठी हुई थी साथ में, यहाँ पर पत्नी थी। बोले अरे पतिदेव डरते क्यों हो आप? अरे जो आपका है दे दो ना, प्लीज गिव व्हाट यू हैव। तो बलि महाराज ही सेड व्हाट डू आई हैव? आई हैव नथिंग नाउ, एवरीथिंग इज गॉन। तो बोलते ये तो गलत बात है, आपका शरीर तो है ना, ये शरीर भी आपका प्रॉपर्टी है, पत्नी आपका प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है जैसे जुआ में दिया जाए। ठीक है, आप चाहे तो मुझे भी लगा दो, परंतु हाँ धर्म कहता है पहले अपने आप को दे। तो बोलती है कि इनको बोलो कि अपने मस्तक पे उनका पाव रखते हैं। ये उनका पत्नी का सजेशन था। कितना स्पिरिचुअल पत्नी थी। आजकल तो हो सकता है पत्नी बोलती कि अरे भाई बस 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 उससे ज्यादा मत ले को चेक, नहीं तो हमारा क्या हालत हो जाएगी। बोले तो कैसे बलि महाराज? उनकी पत्नी कहती है कि अरे भाई साक्षात विष्णु है, यू राइट अनदर चेक, यू गिव हिम योर हेड ऑल्सो। तो पत्नी के कहने पर बलि महाराज झुक जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु सर में रख दीजिए। Point is, theoretically, we may accept that everything comes from God, but when the time of surrender comes, are we ready for it? Aham sarvasya. But Krishna is saying yes. Once you reach to that level of devotion, you are ready for anything. इति मात्रा भजन तेमाम। जब भगवान को इस प्रकार से जानते हैं कि बुध भाव समन्वितन, मन लगा करके भगवान का भजन अब हो सकता है। So thank you very much. आप मन लगा करके भगवान का भजन करेंगे। मैं सोचा 3 और श्लोक करूंगा, but I think the time won't allow us. So next program. Okay. Any questions? एक और श्लोक करें। I have a question, Prabhu. Yes. For this Surya Grahana, I heard couple of temples in the valley they are closing. What we will be doing? Why? I mean, I want to know why. Basically, there are 2 types of understanding in this. The Shastra of a Vaishnava perspective view says that with this Grahana of Surya being swallowed by Rahu, Lord Vishnu and Krishna don't get affected by it. It's a living entity like us who are under the jurisdiction of Navagrahas, we get affected. But the deities in the temple, especially the Vishnu Tattva deities, the Devatas would get affected. The Mudris of Devatas, because why there is Surya Grahana? Surya is being swallowed by Rahu. So Devatas are affected right directly. उसका मैं आपको डिटेल बाद में बताऊंगा दूसरे क्लास में. But Lord Vishnu, he actually came and cut the head of Rahu. Vishnu doesn't get affected by it. In fact, the Shastras say at the time of a Surya Grahana, when the Surya Grahana goes, one should go in the water of Ganges up to the neck. Okay? उस गंजिश में जाकर के भगवान विष्णु का नाम को पुकार करके ये कहनी चाहिए कि भगवान आकर के सूर्य और चंद्र को रक्षा करिए। सूर्य और चंद्र का रक्षा के लिए भगवान विष्णु को पुकारा जाता है। But the point here is we get affected and the pujaris want to be able to engage in worship during that time. Okay? So we just close down the deity, close down the curtain, and deities are in the altar but they don't get contaminated. But in some areas, what can be done is that behind the curtain, the servants of the Lord can be doing the service onto them. If you are doing a devotional service directly with the deities like the sannyasis, like brahmacharis, they won't get affected by it. It's only a grihastha and griyamedi. In a level of, they said that avadutas and sannyasis, when they are directly engaged in devotional service, they are not affected by it. But otherwise, we just keep the curtain of the deities closed. Even we will be doing that. During that time, the curtain should remain closed also. But detail we will hear in the class itself that day. Any other questions?